Okay, student, good morning, all of you. If you have any question, you will not speak in between. Take in the last, I will give you 3 to 4 minutes, then you will speak. Yes, Kiran ma'am, you are host now. हाँ जी मैम, हाँ जी. Okay, but we have done the introductory part yesterday. Okay, and I have discussed in brief about the characteristics of the living organisms. Okay, I have discussed with you that whenever you visit your surroundings, whenever you see your external environment, you always find two type of things in your environment or in your surroundings. Some of the things are the living things and some of the things are the non-living things. Okay, so these living things or living organisms, they are showing certain specific type of characters by virtue of which you feel that these are the living ones. And such type of characters or such type of properties, they are not found in the non-living things. Okay, it is a general observation that sometimes what you see, you met with a different type of animals that are generally found in your surroundings. A dog is barking in your street, a cow is standing next to your house. You can sometimes you see, you observe one person and the person is sleeping. Okay, and there is a feeling that is come into your mind that all of these animals, dog, cow, as well as human, or you can say man, they are the living things, they are the living organisms. ठीक है, ऐसी एक्सेप्शन आपके माइंड में क्यों आई है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि आपको लगता है कि डॉग है, काउ है, ह्यूमंस जो हैं वो क्या कर रही हैं? ब्रीथिंग कर रही है. ठीक है बेटे, रेस्पिरेशन कर रहे हैं. और आपको उसमें क्या नजर आता है कि दे आर ऑल्सो शोइंग सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट. वो आपको घूमते फिरते नजर आते हैं. तो कहते हैं कि नॉट ओनली दीज एनिमल्स दे आर प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग्स, देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स दैट आर आल्सो फाउंड. ठीक है, प्लांट्स हमें घूमते फिरते तो नजर नहीं आते, पर फिर भी हम जानते हैं कि दे आर द लिविंग थिंग्स, दे कम अंडर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, आप सोचिए कि हमने प्लांट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोला है. तो कहते हैं कि हम प्लांट्स जो है इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लांट्स जो है वो हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं. ठीक है, और प्लांट्स जो है, कई प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन है, एंड आफ्टर समटाइम्स दे प्लांट्स जो हैं, अगर उन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशंस दे विल नॉट फाउंड इन देयर हैबिटेट, then sometimes they also dry up. So there are certain characters you see in plants and animals. Yesterday one student told me that one of such character is growth, that all living organisms they show growth. For example, when we take birth, ठीक है, जब हमारा बर्थ होता है, we are in the form of a small baby, and later on we enter into our adolescent stage, we become young human being, and later in the later years of your lifespan you reaches your old age. ठीक है बेटे, उसी तरह से अगर हम अपने गार्डन में एक सीड जो है उसको लगाते हैं और हम उसको अच्छे से केयर करते हैं, we give water to that seed, and then on the very next day what you see, a small seedling it comes out, and later on when you observe the same thing again and again, what do you see, ये छोटी सी सीडलिंग जो है वो एक मिनिएचर प्लांट बन जाती है. वो प्लांट जो है उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है और एक टाइम पे वो प्लांट क्या बन जाता है? ट्री बन जाता है. ओके बेटे, तो कहते हैं कि मूवमेंट्स, ब्रीथिंग and all different type of characters such as reproduction, respond to stimuli, consciousness. ठीक, ये सारे किसके characters हैं? They are the characters of the living organisms. ठीक है, some of these characters such as growth is also found in case of non-living things. जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ माउंटेन्स जो है उनकी हाइट बढ़ भी सकती है और कुछ माउंटेन्स की हाइट कम भी हो सकती है बाय द फिनोमिना ऑफ वेदरिंग. तो इसका मतलब ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही नहीं होती, ग्रोथ जो है वो किसके अंदर होती है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर भी होती है. पर one of the very special thing about growth in the living organisms is that the living organisms they show growth at their own, but the non-living things, if they are showing growth, then this means some external agent, some external
thing is involved in the process of growth. Okay बेटे, अब वो कहते हैं कि sometimes there are certain movements that you observe in the living things, but that movements, they are not visible to your naked eyes. For example, all of you know very well that cell is the structural and functional unit of life, and inside this cell, what is present? Cytoplasm is present, and inside this cytoplasm so many chemical reactions takes place. और इन केमिकल रिएक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं. ओके बेटे, अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट्स शो करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस में. तो ये मूवमेंट्स जो हैं, दिस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, दे आर नॉट विजिबल टू योर आई. ओके बेटे, बट स्टिल दिस मूवमेंट्स दे आर गोइंग इनसाइड योर बॉडी. उसके बाद वो कहते हैं कि we also observe the certain different type of characters. Sometimes we get familiar with, we come in contact with such type of organisms, which when present outside the body of the host, they are not doing any kind of movement. For example, viruses. ठीक है, वायरस जब तक होस्ट की बॉडी से बाहर प्रेजेंट है वो आपको बिल्कुल नॉन लिविंग लगेंगे, वो हिलेंगे भी नहीं, किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं शो करेंगे. पर जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करती हैं, वो क्या करती हैं? मूवमेंट्स शो करने लग जाती हैं. दे यूटिलाइज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट एंड दे इंक्रीज देयर नंबर, दे मल्टीप्लाई, दे शो ग्रोथ. तो दिस मीन्स कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ जो है एक प्रॉपर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको मान सकते हैं कि सो एंड सो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग वन, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट शोइंग ग्रोथ, दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स. इसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्लांट्स की मूवमेंट्स कई बार हमें विजिबल नहीं होती, पर सर्टेन एक्सपेरिमेंट से वी कैन ऑब्जर्व दैट प्लांट्स दे आर आल्सो शोइंग मूवमेंट्स, एंड सम ऑफ दीस मूवमेंट्स आर द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स एंड सम आर द नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स. ओके बेटे, फॉर एग्जांपल द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, द जियोट्रॉपिक मूवमेंट, द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट आर द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. ठीक है, देखो नेम से ही पता लग रहा है. फोटोट्रॉपिक मींस कि अगर प्लांट जो है उसका कोई प्लांट का जो पार्ट है वो लाइट सोर्स की तरफ जो है क्या कर रहा है? बेंड कर रहा है, तो फिर कौन सी मूवमेंट है? फोटोट्रॉपिक. फॉर एग्जांपल द बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट और सन is known as phototropic movement. Similarly, hydrotropic movement means is sometimes the plant part it bend towards the source of water, then it is known as hydrotropic movement. तो कई बार आप किसी रिवर बैंक पे जाते हैं और आपको नजर आता है कि रिवर के बैंक पे कुछ प्लांट्स हैं और वो रिवर वाटर की तरफ जो है बैंड हो गए हैं, तो कौन सी मूवमेंट है? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट है. ठीक है बेटे, कई बार हमें कीमोट्रॉपिक मूवमेंट नजर आती है. हम आपको इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं कि when the pollen grains which are the male gametes they fall on the stigma of the flower, they germinate on the stigma. ठीक है, जब भी पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं. ठीक है बेटे, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे जाके जब फॉल किए हैं तो वो वहां जर्मिनेट क्यों किए? बिकॉज दिस स्टिग्मा दे प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स एंड these chemicals they attract the pollen grains. So such type of growth related movement is known as chemotropic movement because these pollen grains when they germinate they form the pollen tube. ओके बेटे, पर कई बार वो कहते हैं कि मूवमेंट्स जो है वो नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने क्या किया? वी आर टेकिंग मेनी पीरियड्स इन द क्लास. नाउ द स्टूडेंट्स दे गेटिंग बोर्ड एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि मैम वी आर नाउ not interested to study in the class, we have to go to playground. हमें ग्राउंड में जाना है. ठीक है, तो हमने वहां पे क्लास को ले गए एंड द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट प्लेइंग. ठीक है, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर मूविंग हियर एंड देयर. अब मुझे बताइए कि दे आर इफ दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द ग्राउंड, इज सच टाइप ऑफ मूवमेंट अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट? क्या ये मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है? हाँ जी बेटे, अगर ग्राउंड में जाके सभी स्टूडेंट इधर उधर घूमने शुरू हो गए हैं तो क्या ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है? No, ma'am. It is not a growth related movement because the students they are getting bored in the classroom and in order to obtain fun they are moving here and there, they are gossiping with their friends. ठीक है, और इस तरह से ये मूवमेंट जो है वो नॉन ग्रोथ रिलेटेड.
ओके बेटे, कई बार आप क्या करते हैं, यू आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द प्लांट एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, एंड टच मी नॉट प्लांट इसको हम हिंदी में कहते हैं छुई मुई प्लांट, ओके। और इसका एक और नेम भी है, इसका बोटेनिकल नेम है मिमोसा प्यूडिका। अगर प्लांट के लीफ को आप टच करेंगे ना, तो जिस साइड से आप उसके लीव्स को टच करते हैं उसकी अदर साइड जो है वहां से लीफ जो है वो क्या कर जाते हैं, थोड़े से स्क्वीज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। जब आप टच हटा लेते हैं तो उसके बाद लीव्स जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, इसीलिए प्लांट का नेम है टच मी नॉट। तो इस तरह का प्लांट जो है वो भी तो मूवमेंट शो कर रहा है लीव्स की, पर इससे उस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। दिस इज ओनली द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द टच, एंड सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज थिगमोट्रोपिज्म। इट इज नोन एज थिगमोट्रोपिज्म, दैट इज THIGMO, थिगमोट्रोपिज्म, ओके बेटे। अब वो कहता है कि सिंस द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? दोस प्रोसेस that occurs in your body, and because these processes they are successfully occurring in your body, so this means they are the vital one for the successful functioning of your life, ठीक है बेटे। तो ऐसे प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और उसकी वजह से ही आप सर्वाइव कर पा रही हैं, such type of processes are known as the life processes. So this means these life processes are vital for your survival, okay बेटे। अब वो कहते हैं कि what is the major function of this life process, because you know that your body is made up of cell and your body also come in contact with different type of adverse conditions that are present in the habitat, ठीक है। ऐसे कभी भी नहीं होता कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसको हमेशा अच्छी कंडीशंस मिले हैबिटेट, कई बार कंडीशंस एडवर्स होती है, हमें एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे मिलता है, कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं, डीजनरेट करने लग जाते हैं, ठीक है। उन्हें कॉन्टिन्यूअस रिपेयर की जरूरत है, they have to be replaced by the new cells, more and more cell divisions are required, ओके बेटे। तो ये लाइफ प्रोसेस जो है वो आपकी बॉडी में होने वाले ऐसे प्रोसेस हैं जो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, जो वीक सेल हो चुके हैं उनको रिपेयर करते हैं टाइम टू टाइम, और आपके जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के जो डीजनरेट हो रही हैं उनको क्या करती हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक बेटे। तो उसमें उसने सिंपल सा, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो वो आपको बताता है कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सर्वाइव ऑलवेज नीड एनर्जी, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, and this energy every living organism obtain from the food which we get from our external environment, ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको फूड चाहिए, और वो फूड कहाँ से लेता है, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ दिस फूड, तो कहते हैं कि दिस फूड इज जनरली मेड अप ऑफ कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। हमारा जो फूड है या किसी भी एनिमल का जो फूड है वो किससे बना हुआ है, कार्बन या कार्बन के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि जो भी हमारे फूड सोर्स हैं वो कैसे हैं, ऑर्गेनिक है, कार्बन बेस्ड है, ठीक है बेटे। तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो एक वर्सेटाइल एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, और कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद सो मेनी अदर एलिमेंट्स, with hydrogen, with oxygen, with nitrogen. So this means our food is made up of many components which are organic in nature. For example, carbohydrates. For example, हमारे पास प्रोटीन्स आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फैट्स आ जाएंगे, और हमारे पास आ जाएंगी न्यूक्लिक एसिड्स। तो इन सारे कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट है, पर कार्बन के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हमारा फूड किससे बना हुआ है, इन सारे कार्बन रिलेटेड कंपाउंड से बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। और ये फूड हमें कहाँ से लेते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेती है, इससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ओके बेटे। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है बेटे। The act of taking food is known as nutrition. जिस भी तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब वो कहता है कि फूड आपकी बॉडी के अंदर चला गया, but because it is made up of carbon and carbon related compound, this means it is complex in nature.
So it cannot be easily digested by your body. This means your body requires certain things by which it can easily break this complex food into the simplest one. तो कहते हैं कि उसके लिए आपकी बॉडी जो है उसको क्या चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे कि वो कॉम्प्लेक्स को सिंपलेक्स फूड में कन्वर्ट कर सके. ओके बेटे, तो इसके लिए आपकी बॉडी जो है वो क्या करेगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करेगी. और ये केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें उनको क्या है, एक रिएक्टेंट की जरूरत है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व हो सके. तो कहते हैं कि उसके लिए आपकी बॉडी क्या करती है, अगर फूड जो है उसको ब्रेक करने के लिए उसने डाइजेशन प्रोसेस यूज किया था, तो फूड जो है उसका फर्दर ब्रेकडाउन अगर करना है तो उसके लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है बेटे, तो अब हम क्या करेंगे, we do breathing, we do respiration, and through this respiration or breathing, what goes inside our body, oxygen goes inside our body, and with the help of this oxygen we can do the oxidation of these complex compound. ठीक है, तो अगर हमने फूड लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स भी होंगी, फैट्स भी होंगे. तो अगर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होना है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे. ठीक है बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जब भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं तो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म्स जो हैं वो ग्लूकोज होता है. अगर मैं प्रोटीन्स की बात करती हूँ तो प्रोटीन्स जो है वो भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं when their breakdown takes place in the presence of oxygen, and their simplest forms are known as, प्रोटीन्स के सिंपलेस्ट फॉर्म्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स होती हैं बेटे, पर उससे पहले प्रोटीन्स जो है वो सीधे अमाइनो एसिड्स में दे कैन नॉट कन्वर्ट. ठीक है, सम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हिच आर नोन एज प्रोटीएसेस और पेप्टाइड्स. उसी तरह से कहते हैं कि फैट्स की अगर हम बात करें तो whenever the breakdown of the fats takes place, they always convert into fatty acids and glycerols. Okay student, and later on these fatty acids and glycerols their further breakdown takes place and they comes into their simplest form. तो इस तरह से मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, सर्टेन सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं, सर्टेन सब्सटेंसेस रिड्यूस हो रही हैं. This means the metabolic reactions that are occurring in your body, they are the oxidation reduction type of reaction. Okay बेटे, तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ टू टर्म्स. One is known as catabolic reaction and other is known as anabolic reaction. तो देखो आपकी बॉडी के अंदर अगर कहता है कि बिगर मॉलिक्यूल्स जो है उनका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, then such type of reactions are known as catabolic reactions. और अगर वो कहते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स they join together and they form the bigger molecules, then this means such type of reactions are known as anabolic reactions. तो आपकी बॉडी में दो तरह की रिएक्शंस हो रही हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक. ठीक है बेटे, अगर मुझे एग्जांपल देना हो कैटाबॉलिक का तो बताइए मैं कैटाबॉलिक के एग्जांपल में कौन सा एग्जांपल दूंगी. अभी मैंने आपको बोला कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच द बिगर मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक्स एंड सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब मुझे बताइए कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में मैं कौन सा एग्जांपल दूंगी. डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड, वेरी गुड. ठीक है बेटे, डाइजेशन ऑफ फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स जो है उनका ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और हमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलेंगे. ठीक है, इट इज वेरी गुड एग्जांपल. और अगर वो कहता है कि मुझे एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जांपल देना है तो बताइए कि हमारे एनवायरनमेंट में कौन सी एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही है. सभी बच्चों को आती है, अभी अभी हमने उसके बारे में बताया था बेटे. दैट रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दैट रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस. उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, both of them are the simplest type of molecules and they when they join together they form carbohydrates. That means 6 molecules of carbon dioxide reacts with 12 molecules of water and gives C6H12O6 which is glucose along with 6 molecules of oxygen and larger amount of energy is released. This means this type of reaction is an anabolic reaction. Okay बेटे, तो अब वो कहते हैं कि जब इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स अब बॉडी इजीली क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है. ओके बेटे,
but these molecules, they are not digested by a single part of your body. Each and every part of your body require these molecules for energy. This means there should be another system present in your body that is involved in the transport of these molecules from one body part to another. So here I am talking about the circulatory system. I have discussed about digestive system, I have discussed about respiratory system. अब मैं बता रही हूँ कि अगर एक जो पार्ट है उससे दूसरे पार्ट को भी तो फूड चाहिए ना, तो फिर हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, एंड वो कौन सा है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट है. जैसे ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है, Electric blood. ब्लड डेबिटिंग. वेरी गुड. ठीक है, ब्लड है तो ब्लड जो है वो बॉडी के सभी सेल्स को कनेक्ट करता है, वो फूड भी लेके जाता है, वो हार्मोन्स भी लेके जाता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का रिमूवल भी करता है. तो इसलिए कहता है कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो भी लाइफ प्रोसेस है. ओके, अब वो कहता है कि अगर बॉडी के अंदर इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, देन यू नो दैट एट द एंड ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, certain end products are formed. So whenever these biochemical reactions that are occurring in the body of the living organism, and so many metabolites such as carbohydrates, proteins, fats, when they decompose, तो हमेशा उसके कोई ना कोई end products तो रिलीज होते हैं. तो हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ end product रिलीज होते हैं और वो नाइट्रोजीनियस होते हैं. ठीक है बेटे, and nitrogen cannot be stored in your body for a longer time because it is harmful for your body. It must be removed from your body. So this means we required one another important process, that is a life process, and that is nothing but it is only excretion. So what is excretion? Excretion is the removal of the waste product from your body, and these waste products are the nitrogenous waste products, which are actually the end products of the chemical or metabolic reactions that are occurring in the body of the living organisms. ठीक है बेटे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, देखिए सभी स्टूडेंट. तो कहते हैं कि ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेलुलर और दे मे बी मल्टी सेलुलर. So it is very simple to discuss the structure of a single celled organism, because here the body is made up of only single cell. This means each cell, ठीक है, एक ही सेल है तो वही एक सेल जो है वो क्या कर रहा है, फूड लेके भी जा रहा है, गैसियस एक्सचेंज भी कर रहा है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट में भी इन्वॉल्व है. ओके बेटे, पर अगर वो कहते हैं कि बॉडी जो है इट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज देयर, दिस मीन्स each and every cells cannot be in contact with the external environment. So in case of a single celled organism, the transport of the food, exchange of gases, removal of the waste, it generally takes place by a simple method of diffusion. But diffusion cannot be efficient in case of multicellular organism, because all the cells of a multicellular organism are not in direct contact with the surrounding. So diffusion cannot satisfy all the needs, all the requirements of the cells. Okay बेटे, अब देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है ना, वो यही है. कहता है कि why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? तो आपका आंसर बिल्कुल वन लाइन में होगा कि in case of single celled organism, all the cells and tissues they are in direct contact with the surroundings. So the single cell is involved in the transport of the food, in the transport of gases, and the removal of the excretory product. But in case of multicellular organisms, so many cells are present in the body, and each and every cell is not in direct contact with the surroundings. So that's why the diffusion cannot be an efficient method to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans. Okay, बेटे. क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें आता है कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. तो वी यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स टू टेल अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग वन. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे शो ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज टू डेवलपमेंट. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर सेम काइंड.
The living organisms, they have the ability to respond the stimuli that are present in their surroundings. The living organism has a sense of consciousness. ठीक बेटे, इसके अलावा कहता है कि living organisms जो हैं, they can adapt themselves to the conditions that are present in their surrounding. That means they have the ability to maintain their homeostasis. तो ये सारे हम इसमें लिखेंगे. What are outside raw material used by an organism? तो outside raw material जो है, जो organism use करता है, वो बेटे food के form में होता है, and that food is actually the carbon based food. So it is made up of carbon and carbon related compound. It is organic in nature. Okay. अब कहते हैं कि what processes would you consider essential for maintaining life? तो your answer should be these are the life processes which are essential for maintaining life, and they are the digestive systems that are occurring in your body, respiratory, or you can say circulation, excretion. All of these, digestion, respiration, circulation, excretion, they are the life process. Okay बेटे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. So the topic is nutrition. Okay, if you have to define nutrition, what is nutrition? It is actually the act of obtaining food from the external environment or surroundings. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस मेथड से फूड ऑब्टेन करता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. तो हियर ही इज डिस्कस्ड अ वेरी सिंपल इंसिडेंस दैट समटाइम्स व्हेन यू वॉकिंग फास्ट ऑन द रोड और यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, ठीक है, व्हाट यू फील दैट योर एनर्जी इज यूज्ड अप एंड यू आर गेटिंग टायर्ड. तो इन दैट केस you want to gain more and more energy. So whenever you return home, you take some food so that this food, it gives you energy and you can do different type of a task. तो कहते हैं कि जो भी फूड हम जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं उससे आपकी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, आपकी बॉडी में न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है उसमें वो सारे के सारे सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है. तो देखो हाउ द लिविंग थिंग्स दे गेट देयर फूड. So there are two methods by which the living organisms they get their food. So sometimes there are some special type of organisms which use a simple type of food, and that food they obtain from the inorganic sources that are present in their surroundings in the form of carbon dioxide and water. कहता है कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने सराउंडिंग में से जो फूड लेते हैं ना वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की फॉर्म में होता है, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल जो अपने सराउंडिंग्स में से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है. तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द प्लांट्स. सो दीज ऑर्गेनिजम्स दे एक्चुअली आर द ग्रीन प्लांट्स एंड द बैक्टीरियाज, ठीक है, सर्टेन बैक्टीरियाज सच एज साइनोबैक्टीरियाज दे कैन आल्सो डू फोटोसिंथेसिस. और कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फूड नहीं लेते और उनका फूड इनऑर्गेनिक भी नहीं होता. कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. अगर हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उनका फूड जो है वो ऑर्गेनिक नेचर रखता है उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. ठीक है बेटे, and we also comes under heterotrophs because we are dependent on plants for obtaining our food. Okay students, तो कहते हैं कि if our food is a complex one, this means that cannot be easily digested by our body, and this complex food must be divided into the simplest one. तो आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ बायोकैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी which are known as enzymes. So these enzymes, they are involved in certain metabolic reactions or biochemical reactions which break the complex molecules of food into the simplest one. तो कहते हैं कि वो reactions जो हैं उनमें enzymes involved होते हैं और enzymes जो है वो complex food को simplest में convert कर देते हैं और within few second ही वो आपकी body के अंदर complex food को simplest में convert कर देते हैं. ठीक है बेटे, तो न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह की है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन or heterotropic nutrition. Autotropic nutrition is always found in plants, and here the green plants and some bacteria such as cyanobacteria, they use inorganic raw material such as carbon dioxide and water, and in the presence of a green pigment known as chlorophyll and sunlight,
They perform photosynthesis and produce carbohydrates along with oxygen and large amount of energy. Okay, beta. And what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition is a kind of nutrition in which certain living organisms, they are dependent on plants for obtaining their food. And this food which they obtain from plants, they are generally organic in nature. It is complex in nature. And later it is a break in their body in simplest form with the help of enzymes which are known as biocatalysts. तो देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में उसने आपको बताया हुआ है. तो हमेशा याद रखिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑलवेज फाउंड इन प्लांट्स एंड प्लांट्स दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस and here the autotrophs, they take inorganic raw materials such as carbon dioxide and water, and this carbon dioxide and water, they react together in the presence of sunlight and a green pigment present in the leaves of the plant known as chlorophyll in cell organelles called chloroplast. And as a result, what is formed, the carbohydrates are formed, and these carbohydrates are later used by the heterotrophs. ठीक है बेटे. तो प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स यूज कर लेते हैं, पर कुछ फूड जो है वो प्लांट के अंदर बचा रहता है. तो अपना एक्स्ट्रा फूड जो है वो प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और कहते हैं कि एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड. तो एनिमल्स भी फूड यूज कर लेते हैं, पर सम फूड इट रिमेन्स इन देयर बॉडी. तो दिस एक्स्ट्रा फूड व्हिच इज प्रेजेंट इन द एनिमल बॉडी, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो दो चीजें आप याद रखेंगे कि प्लांट हमेशा अपना एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल हमेशा अपना एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म. ओके बेटे. तो सी दिस डायग्राम दैट इज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस एंड देयर इज अ इक्वेशन. This is known as the classical equation of photosynthesis. How many molecules of carbon dioxide? 6 molecules of carbon dioxide react with 12 molecules of water in the presence of chlorophyll and sunlight. It gives C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen along with 6 molecules of water. Okay, बेटे. तो simplest type of carbohydrate is known as glucose. तो यहाँ पे C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है. उसके बाद उसने आपको बताया हुआ है कि 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में. ठीक बेटे. सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. और प्लांट्स में कौन सी चीज है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है? क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स, एंड दीस सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट. ओके बेटे. तो उसके बाद देखिए, जब लाइट एनर्जी जो है लीफ ने एब्जॉर्ब कर ली है क्लोरोफिल से, तो दिस लाइट एनर्जी इट इज यूज्ड बाय द रॉ मटेरियल, and with the help of this light energy, the raw material which is carbon dioxide and water, they react and they form certain other chemicals. So this light energy is later converted into the chemical energy. और एक चीज यहाँ पे और होती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाता है, और लास्ट में इसीलिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जो है वो एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में मिलते हैं. ओके बेटे. एंड तीसरी चीज जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है. ठीक है बेटे. तो तीनों इवेंट याद रखेंगे. लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, सेकंड इज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, and splitting of water molecule also takes place, and when water split it form hydrogen and oxygen, and third one is reduction of the carbon dioxide to carbohydrates. ओके बेटे. तो यहाँ पे आपको उसने लीफ का जो है डायग्राम दिखाया हुआ है कि when you see the transverse section of the leaf, you come in contact with these type of organelles. So green organelles that are present in the lamina of the leaf, which are known as chloroplast. And लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं ना बेटा, सबसे आउटर मोस्ट सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जो आउटर लेयर को बनाते हैं उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं किसी भी लीफ की, और किसी भी लीफ की जो लोअर लेयर होती है उसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं. और सेंटर में लीफ के काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सम ऑफ द सेल्स दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एंड दीज सेल्स व्हिच आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड दे आर एक्चुअली नोन एज द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर नोन एज द पैलिसेड सेल्स. और कुछ सेल्स जो हैं उनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, तो इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? These cells they are known as the spongy parenchyma. और ऊपर वाले जिसमें compactly arranged closely packed cells होते हैं उसको पैलिसेड टिश्यू कहते हैं. तो पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा को मिलाकर हम उसको मेसोफिल टिश्यू कहते हैं.
ठीक है, फिर से सुनेंगे। अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के बाद हमें क्या नजर आती है? तो अपर एपिडर्मिस के बाद हमें क्लोजली पैक्ड सेल्स नजर आती हैं विच आर नोन एज पैलिसेड सेल्स। और पैलिसेड सेल से नीचे हमें कौन से सेल्स नजर आते हैं? दीज आर नोन एज द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, and both the palisade cell and spongy parenchyma they constitute together what? Mesophyll tissue, that is MESOPHYLL, mesophyll tissue. Okay बेटे, and नीचे हमें लीफ में लोअर एपिडर्मिस नजर आती है. You have also studied in class 9 that there are some specific type of pore like structure present in the lower epidermis of the leaves. In more amount, these are known as stomata. Okay, this stomata is concerned with transpiration and exchange of gases. इसके अलावा एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक वैक्सी लेयर नजर आती है विच इज नोन एज क्यूटिकल. ठीक है, तो ये क्यूटिकल इसलिए प्रेजेंट होती है, वैक्सी होती है ये, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है उसका लॉस ना हो व्हेन द सनलाइट इट फॉल्स ऑन द लैमिना ऑफ द लीफ. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि एक चीज तो आप कह रहे हो कि हमेशा लाइट की हार्वेस्टिंग जो है, लाइट की कैप्चरिंग कौन करता है? क्लोरोफिल पिगमेंट करता है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल जो है इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. उसके लिए हमने क्या किया? हमने एक वैरीगेटेड लीफ लिया है. वैरीगेटेड लीफ वो लीफ होता है जिसमें कुछ पोर्शंस ग्रीन होते हैं और कुछ पोर्शंस जो है वो कलरलेस होते हैं. ठीक है बेटे, तो ऐसा प्लांट जो है उसको हम डार्क रूम में रखते हैं फॉर 3 to 4 days ताकि उसमें जितना भी स्टार्च फॉर्म हुआ है वो यूज अप हो जाए. उसके बाद हम उसे डार्क रूम से निकाल लेते हैं और 6 आवर्स के लिए हम उसको लाइट में रखते हैं ताकि उसमें फिर से स्टार्च का फॉर्मेशन हो. फिर हम उसका एक लीफ प्लग करते हैं और उस लीफ के हम जो ग्रीन पोर्शंस हैं उसको एक ट्रेस पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं. ओके बेटे, फिर उस लीफ को हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और बॉइलिंग वाटर से निकाल के उसे एक ऐसे बीकर में डालते हैं जिसमें अल्कोहल होती है, और फिर उस बीकर को हम एक वाटर बाथ के अंदर रख देते हैं क्योंकि अल्कोहल को हम डायरेक्टली जो है वो गर्म नहीं करेंगे बिकॉज इट कैचेस फायर. तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम क्या देखेंगे कि लीफ जो है जब हम उसको अल्कोहल में से निकालेंगे और उसका आयोडीन टेस्ट करेंगे तो जो ग्रीन पोर्शंस है वहां पे आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देगी, क्योंकि आपको पता है कि व्हेनेवर आयोडीन कम्स इन कांटेक्ट विद स्टार्च इट ऑलवेज गिव ब्लू ब्लैक कलर. और ये जो ब्लू ब्लैक पैचेस डेवलप हुए हैं उसको हम ट्रेस पेपर पे रख के देखेंगे तो ये ब्लू ब्लैक पैचेस जो हैं वो एक्चुअली ग्रीन पोर्शन से सिमिलर होंगे. तो हमें पता लग जाएगा कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पोर्शंस में होती है बिकॉज उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. ठीक है बेटे, यहाँ तक हम आज स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट, इफ यू